Hello everyone, today we are going to start a new chapter, chapter number 13, Fun with Magnets. So let's get started. First of all, have you ever wondered how does a fridge door close automatically and how does a crane separate all the iron scrap from heap of junk? मतलब कि आपने कभी सोचा है कि फ्रिज का डोर अपने आप कैसे बंद हो जाता है और क्रेन कैसे आयरन का स्क्रैप पूरे जंग से कैसे सेपरेट कर देती है? ये सब वो पता है मैग्नेट्स की वजह से। और मैग्नेट्स की डिस्कवरी मैग्नेस ने की थी। मैग्नेस एक चरवाहा यानी शेफर्ड था। Magnus was a shepherd from Greece. He used to herd goats and sheep. One day he noticed that iron tip of his stick was attracted to a rock and he had to put extra force to free the stick from the rock. एक दिन जब वो गोट्स और शीप को जब हर्ड कराने जा रहा था तो उसने ये देखा कि जो वो अपने साथ स्टिक रखता था तो वो एक स्टोन के पास अट्रैक्ट हो रही थी। वहीं से पहले मैग्नेट की खोज हुई। It is believed that it is how the natural magnets were formed and these rocks were called magnetite. और इन्हीं रॉक्स को मैग्नेटाइट कहा गया। These magnetic rocks were named magnetite after the shepherd Magnus. इन मैग्नेटिक रॉक्स का नाम मैग्नेटाइट मैग्नस के नाम पर रखा गया और मैग्नेटाइट में आयरन होता है। मैग्नेटाइट contains iron. Artificial magnets. Nowadays magnets are made from iron and its alloys. Magnets made from this method are called artificial magnets. Artificial magnets वो magnets होते हैं जो कि आयरन और उसके alloy से बनते हैं। और आजकल जितने मैग्नेट बनते हैं वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं और सब इसी तरीके से बनते हैं। Nowadays, artificial magnets are made in different shapes like artificial magnet भी बहुत different shapes में होते हैं जैसे bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical magnet और ball ended magnet। ये सब कुछ different shapes के magnet हैं। Magnetic materials and non-magnetic materials. Magnetic materials are those materials which get attracted towards magnet. Magnetic materials वो होते हैं जो कि magnet की तरफ attract होते हैं। Non-magnetic materials are those materials that don't get attracted towards a magnet. और non-magnetic materials वो materials होते हैं जो magnet की तरफ attract नहीं होते हैं। Examples of magnetic and non-magnetic materials. Magnetic materials, iron, nickel, cobalt, etc. Magnetic materials जैसे कि iron है, nickel है, cobalt है, ये सब metals हैं। जैसे कि ये स्पून है, नेल है और ये चेन है, तो ये सब मेटल के बने होते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। जैसे कि पेपर होता है, जैसे पॉलिथीन होती है, जैसे ग्लास होता है, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं क्योंकि ये मैग्नेट से नहीं चिपकते हैं। Poles of a magnet. There are two poles of a magnet. Magnetic force is strongest at the poles of a magnet because the magnetic field lines are most dense in those regions. एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। Magnetic force is strongest at poles of a magnet because the magnetic field lines are most dense in those regions. और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सबसे ज्यादा डेंस होती है पोल्स पे, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स उनके पोल्स में होता है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। टेस्टिंग दैट मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट पोल्स। हमें देखना भी है कि कैसे पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। We can test that magnetic force is strongest at poles by putting iron fillings near magnet and seeing how the iron fillings are attracted to the magnets. By this, we can see that the iron fillings stick mostly to the poles, which show that magnetic force at the poles is the strongest. जब हम आयरन फिलिंग्स लेते हैं जो कि बहुत फाइन आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उन्हें मैग्नेट्स के पास लाते हैं तो आयरन फिलिंग्स उनके पोल्स ही के पास ज्यादातर चिपकती है। जैसे आप इमेज देख सकते हैं, जैसे आयरन फिलिंग्स नॉर्थ पोल के पास जाके चिपकती है और ज्यादातर आयरन फिलिंग्स साउथ पोल के पास चिपकती है। इससे प्रूव होता है कि मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पोल्स के पास। Finding direction using magnets. अब डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं मैग्नेट का यूज करके। A simple way to know direction is by using magnets. We can know direction by suspending a magnet freely in air with the help of a string. हम मैग्नेट से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं जब हम किसी भी मैग्नेट को एक स्ट्रिंग या फिर किसी भी डोरी की मदद से अगर बांध दे फ्रीली एयर में, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करेगा। By this we can see magnet come to rest at same direction again and again. और यही बात यहाँ बताई गई है कि वो बार बार एक ही डायरेक्शन पे रेस्ट पे आता है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है। बट डायरेक्शंस आर नॉट रैंडम, अ मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। The north pole of a magnet always point towards north direction if suspended freely. The south pole of a magnet always point towards south direction if suspended freely. हम कभी भी अगर कोई मैग्नेट सस्पेंड करते हैं फ्रीली, मतलब ऐसे हवा में उसको लटकाते हैं स्ट्रिंग की मदद से, तो हमेशा जो उसका नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करेगा और उसका साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करेगा। अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। जो सेम पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ नॉर्थ वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। What is compass? Compass is a device made using a magnetic needle enclosed in a glass cover in which needle moves freely
The needle has north and south direction marked on it, which does north south direction. जैसे आप ये कंपास देख सकते हैं, जैसे पूरे ग्लास के कवर में बंद है और यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल है जिसमें नॉर्थ और साउथ शो कर रहा है. The needle of a compass moves until it faces north-south direction. North represented by capital N and south represented by capital S are indicated by different colors. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ यहाँ रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है और साउथ यहाँ पे ग्रे कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. How to make your own magnet? We can make our own magnet by stroking an iron piece from one pole to other without lifting the iron piece. After reaching to the other end, we lift the iron piece and take it to the initial pole. We start doing this again and again 30 to 40 times to magnetize the iron piece. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम कोई मेटल पीस को ले करके, जैसे हमने साउथ पोल से स्टार्ट किया तो नॉर्थ पोल तक लेके आएंगे और यहाँ से उठा के फिर से साउथ पोल पे लाएंगे और फिर उसके बाद नॉर्थ पोल से फिर उठा के साउथ पोल पे लाएंगे. फिर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन 30 to 40 times to magnetize the iron piece. But we should keep in mind that we should keep metal piece in same direction. Precaution while handling magnets. These are some precautions while handling magnets that prevent magnets from losing their magnetism. Like, first, you should not drop magnet from height. हमें कोई भी मैग्नेट किसी भी ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए, इससे वो अपना मैग्नेटिज्म खो सकता है. सेकंड, यू शुड नॉट हीट अ मैग्नेट. हमें हीट भी नहीं करना चाहिए मैग्नेट को, उससे भी वो अपना मैग्नेटिज्म खो देता है. थर्ड, यू शुड नॉट हैमर अ मैग्नेट. हमें किसी भी मैग्नेट पर में हथौड़ा मारना नहीं चाहिए या फिर हैमरिंग नहीं करनी चाहिए. फोर्थ, वी शुड कीप अ मैग्नेट इन पेयर विद अनलाइक पोल्स. हमें मैग्नेट को हमेशा अनलाइक पोल्स पेयर में रखना चाहिए, जिससे कि वो अपना मैग्नेटिज्म बनाए रखते हैं और उनमें सेफली भी रख सकते हैं. फिफ्थ, वी शुड कीप एंड्स ऑफ मैग्नेट सेपरेट विद हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन और वुड. हमें मैग्नेट के एंड को सेपरेट करना चाहिए सॉफ्ट आयरन और वुड से, जिससे कि हम मैग्नेट को सेफ रख पाएं और उसका मैग्नेटिज्म बचा पाएं. सिक्स, वी शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट. जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ हॉर्सशू मैग्नेट बना हुआ, तो हमें सॉफ्ट वुड या मेटल का पीस लगा देना चाहिए, जिससे कि वो सेफ रहे और अपना मैग्नेटिज्म ना खो. सेवन, वी शुड कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स. हमें मैग्नेट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रहना चाहिए, जैसे कि हमें टीवी के पास मैग्नेट नहीं ले जाना चाहिए, उससे टीवी भी खराब हो सकती है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर है वीडियो जरूर चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताइए. थैंक यू.